here I am having a data set. First column is number of hours, second column is percentage. Now what is this number of hours in percentage? There is one student who studied for 1 hour and he got 45%. There was another student who studied for 2 hours and he got 56%. Similarly, I am having the data set of past students and the 12th number of student. You can see 12th number of student, he studied for 6.5 hours and he got 69%. So on the basis of this data set, मुझे प्रेडिक्ट करना है कि अगर मैं 6.7 आवर्स के लिए पढ़ूं, इफ आई स्टडी फॉर 6.7 आवर्स, हाउ मच परसेंट आई विल गेट. सो इट इज अ प्रेडिक्शन प्रॉब्लम. ओके, सो इट इज अ प्रेडिक्शन problem. So it becomes very easy if I have a equation like this. You can see it becomes very easy when I have equation like this. I can say that this percentage is y. For example, I can say this percentage is y and this hours, number of hours is x. So in such case, if I want to predict percentage, if I know x, I can use an equation like this. So if I have such equation, I can put number of hours is my input. So if I study for 6.7 hours, over here I will be getting 78.4%. So you can easily get the value of y or percentage if you have an equation like this. So it has become very easy. What is artificial intelligence at the end of the day? At the end of the day, artificial intelligence gives an equation or equation like something. I repeat again, artificial intelligence gives an equation or equation like something because of which prediction occurs. I repeat again, artificial intelligence gives an equation or equation like something which gives the prediction. Okay, so now let us see how this equation has been framed in our further part. Okay, now before going to the equation, first we need to understand what is the steps in artificial intelligence. First we will see what is the step in artificial intelligence and then we will go to prediction problem. Okay, what was our prediction problem? Our problem was, if I study for say 6.7 hours, how much percentage I will get. Okay, this prediction, how much percentage I will get, I need to make from past data. तो पिछले डेटा से prediction कैसे करें, equation कैसे बनाए, ये हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखेंगे. ठीक है, सो स्टेप्स इन मशीन लर्निंग पहले देख लेते हैं. फर्स्ट स्टेप इज डेटा प्रिपरेशन. जैसे आपके पास ये डेटा दिया गया है, ठीक है, तो इसमें कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी है. ये डेटा ऑलरेडी किसी के पास अवेलेबल होगा या फिर मैं गया हूंगा पिछले साल के बच्चों के साथ एंड आई हैव कलेक्टेड दिस डेटा कि भाई तुमने 1 घंटे के लिए पढ़ा तो तुम्हें कितना परसेंटेज मिला एंड सो ऑन. बट क्या होता है इन कंपनीज, व्हाट हैपेंस कि if there are more than 10,000 15,000 data and there are more than 5 to 11 row columns, there is a possibility कि कोई एक बॉक्स खाली रह गया हो. जैसे ये वाला बॉक्स खाली रह गया, किसी ने फिल ही नहीं किया या फिर डेटा गलती से डिलीट हो गया. सो इन सच केसेस वी नीड टू फिल दिस डेटा. तो वो वाले प्रोसीजर को बोला जाता है डेटा प्रिपरेशन और डेटा क्लीनिंग और डेटा मैनिपुलेशन. दैट वी विल सी इन फर्दर पार्ट. Okay, for now we have got ready-made data, so the first step is not required. Second step is splitting of data. Second step is splitting of data. Again ये splitting of data के अंदर दो पार्ट है. पहला पार्ट आप जरा सा ध्यान से देखना. Let me zoom it. So your first part in splitting of data is identifying what is an input or output. Input क्या है, output क्या है, वो identify करना बहुत जरूरी है. ठीक है, जैसे कि नंबर ऑफ आवर्स अ स्टूडेंट इज स्टडिंग, वो इनपुट है कि आउटपुट है. हमेशा जो चीज आपको प्रिडिक्ट करनी है दैट विल बी आउटपुट, रेस्ट विल बी इनपुट. आपको क्या प्रिडिक्ट करना है कि आपको परसेंटेज कितना मिलेगा. इफ यू स्टडी फॉर सो एंड सो आवर, सो यू आर प्रिडिक्टिंग परसेंटेज. सो परसेंटेज इज योर आउटपुट एंड आउटपुट परसेंटेज को छोड़ के जो भी है दैट इज योर इनपुट. नंबर ऑफ आवर्स इज इनपुट एंड परसेंटेज इज आउटपुट. So this is the first thing. आप splitting of data सेकेंड स्टेप में पहले आइडेंटिफाई करो कि इनपुट क्या है आउटपुट क्या है. उसके बाद में
उसको डिवाइड करो ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा में. आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज दिस ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा. ठीक है. उसके बाद में थर्ड स्टेप है ट्रेनिंग ऑफ एल्गोरिदम. जैसे मैंने सेकेंड वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि कुछ तो कैलकुलेशन होता है एल्गोरिदम में जिसकी वजह से एरर कम होता है, दैट इज टर्म्ड एज training of algorithm. When the error remains constant, if you remember in your second lecture, the error remains constant. एक ग्राफ बना था जिसमें सॉफ्टवेयर was learning, improving itself. That is called as training of algorithm. थर्ड स्टेप होने के बाद में फोर्थ स्टेप है एरर. एरर निकालना कि आपका सॉफ्टवेयर कितना एरर दे रहा है. This is the fourth step. So we will do all the four steps manually so that you understand more in a better manner. Then we will jump on to the coding part. Same thing we will do in coding. Okay. So first part is data preparation. It is or data is already there. Second step is splitting of data. So let us see what is splitting of data. So let me zoom it more. Splitting of data में first step था identify. See, this was your first step. This is your data which is already available with you. In second data, you need to identify what is input and output. So what I did is I had these two columns together. मैंने क्या किया, दोनों को सेपरेट कर दिया. So this is my input, number of hours is my input, ठीक है, and output is my percentage. तो यहां पे I am telling that my input is x. ये कॉलम का नाम हो गया x. अब आवर्स की जगह पे हम इसको x के नाम से जानेंगे. ठीक है. So this hours is x and your output percentage is y. तो इसको जानबूझ के अलग अलग कर दिया गया है. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप 2 का एक और अगला पार्ट है पार्ट 2. स्टेप 2 का पार्ट 2 इज व्हाट हैड वी सीन. अगेन वी आर कमिंग बैक. स्टेप 2 का सेकंड पार्ट इज ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा. ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा. देखो होता क्या है कि जब भी हम कोई भी इक्वेशन बनाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या फिर हम सॉफ्टवेयर को लर्निंग कैपेबिलिटी देते हैं, तब हम क्या करते हैं, पूरा डेटा, ये पूरा का पूरा डेटा था, इस पूरा के पूरे डेटा में से सम परसेंटेज ऑफ डेटा वी कीप फॉर ट्रेनिंग द एल्गोरिदम. एल्गोरिदम को ट्रेन करने के लिए, उसको सिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. एंड सम डेटा वी यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ एल्गोरिदम. टेस्टिंग का मतलब ये जानने के लिए यूज करते हैं कि उसका एरर कितना आया है. ऐसा भी कर सकते हैं कि ये पूरा का पूरा डेटा ट्रेनिंग के लिए भी यूज करो और यही डेटा टेस्ट करने के लिए भी यूज करो. हो सकता है, आप कर सकते हो. बट द प्रॉब्लम इज, before telling you what is the problem, I will give you one example. ठीक है. A very simple example is you have given your exams, many exams. For example, you have given your MHT, CET or other exams. उसमें क्या होता है कि teacher has made you study for complete 1 year. और टीचर ने जो भी आपको क्वेश्चंस दिए होंगे उसका आंसर भी बोर्ड पे बताया होगा. So teacher has given you question as well as answer, question and answer, and they might have allowed you for discussion and everything. तो 1 साल तक आपको क्वेश्चन एंड आंसर की प्रैक्टिस करवाई गई. प्रैक्टिस करवाने के बाद आपने एग्जाम लिखा. 1 साल तक प्रैक्टिस किया, लेकिन एग्जाम कितने घंटे का लिखा, 2 घंटा या 3 घंटे का ही एग्जाम लिखा. आई रिपीट अगेन, यू प्रैक्टिस फॉर अ पर्टिकुलर एग्जाम फॉर कंप्लीट 1 year, बट यू गेव द एग्जाम ओनली फॉर 3 hours. व्हाट इफ इन योर एग्जाम, अगर आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ जाता है जो टीचर ने पढ़ाया था. इफ सेम क्वेश्चन अकर्स इन योर एग्जाम, जो आपके टीचर ने पढ़ाया था, तो क्या हो जाएगा, यू विल स्कोर 100 on 100 इफ सेम क्वेश्चंस अकर. व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज योर ब्रेन डिड नॉट वर्क इन द एग्जाम. आपके ब्रेन ने देखा कि ये क्वेश्चन तो पहले देखा हुआ है, ये क्वेश्चन पहले देखा हुआ है, तो उसका सीधा स्टेप और आंसर आपने रिकलेक्ट किया और आपने टिक कर दिया इन योर एमसीक्यू. ठीक है. तो क्या हो गया, हमें पता ही नहीं चला कि आपका दिमाग कितना एफिशिएंट है. आपका दिमाग कितना एफिशिएंट है ये हमको पता ही नहीं चला. ठीक है. हेंस अगर एग्जाम में अलग क्वेश्चन आते हैं, जैसे जनरली होता है, जो आपके टीचर ने नहीं पढ़ाया था, तब पता चलता है कि आपका दिमाग की कितनी ट्रेनिंग हुई है. और आपको अगर 80% मार्क्स मिलते तो हम बोल सकते हैं 20% इज द एरर. इफ 100% मार्क्स मिलने चाहिए थे तो. ठीक है. तो ऐसे आपको अगर अलग क्वेश्चन दिया जाए एग्जाम में सॉल्व करने के लिए जो आपके टीचर ने नहीं पढ़ाया, तब आपके दिमाग की एक्चुअल एफिशिएंसी चेक होती है कि आपका दिमाग कितना एरर दे सकता है. फॉर सेम रीजन, इफ आई यूज ऑल दिस डेटा सेट फॉर ट्रेनिंग ऑफ एल्गोरिदम,
एल्गोरिदम को सिखाने के लिए अगर मैंने सारा डेटा सेट यूज कर दिया, ठीक है, और ये तो मुझे एंड में चेक करना है ना कि सॉफ्टवेयर कितना एरर दे रहा है। अगर सॉफ्टवेयर बोलता है कि कल के दिन बारिश होने वाली है, तो सच में होती है क्या? बारिश नहीं होती है। सॉफ्टवेयर ने बोला कल 12 बजे होगी बारिश, लेकिन बारिश हुई 12:30 बजे, आधे घंटे का एरर मिला। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ये एरर, कि कोई भी सॉफ्टवेयर एरर कितना देता है, सारा का सारा डेटा आपने डाल दिया लर्न करने के लिए, तो सिखाने में सारा डेटा यूज कर लिया, फिर आप ये वाले डेटा से टेस्ट भी कर रहे हो। ठीक है, मतलब आप उसमें नंबर ऑफ आवर्स डाल के देख रहे हो कि वो कितना परसेंटेज देगा। वो 67 ही देने वाला है, बिकॉज द सॉफ्टवेयर हैज ऑलरेडी स्टडीड दिस डेटा। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर को क्या करना पड़ता है, सिखाने के लिए, ट्रेन करने के लिए वे प्रोवाइड अदर डेटा। ठीक है, सिखाने के लिए अलग डेटा देते हैं और उसको टेस्ट करने के लिए, उसका एरर निकालने के लिए अलग डेटा देते हैं। हमेशा टेस्ट करने के लिए डेटा कम होता है, ट्रेन करने के लिए डेटा ज्यादा होता है। जैसे आप लोग 1 साल तक पढ़ते हो, तो जो डेटा आपके दिमाग को चाहिए ट्रेनिंग के लिए वो ज्यादा होता है 1 ईयर का डेटा, और टेस्ट करने के लिए 3 आवर्स, ओनली 3 आवर्स। So now you can understand where there is 365 days and only 3 hours you have to test your brain. तो हमेशा टेस्टिंग डेटा कम होता है। इसीलिए हम सिर्फ इतना, सेकेंड पार्ट में जो इतना है ऊपर का जो पार्ट है, दैट वी विल यूज फॉर ट्रेनिंग ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को प्रिडिक्टिव कैपेबिलिटी देने के लिए इतना डेटा यूज करेंगे। ठीक है, इसीलिए योर सेकेंड स्टेप इज सॉरी, योर थर्ड स्टेप का, आई एम सो सॉरी, सो योर सेकेंड स्टेप का सेकेंड पार्ट इज ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा में डिवाइड करो। पहले इनपुट एंड आउटपुट को आइडेंटिफाई करो, फिर इनपुट और आउटपुट को ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा में आप डिवाइड कर दो। कितने में डिवाइड करना है वो आपके ऊपर है। जनरली लोग 30% टेस्टिंग एंड 70% ट्रेनिंग के लिए डालते हैं। ठीक है, तो हमने भी कुछ वैसे ही रूल यहाँ पे फॉलो किया हुआ है, अराउंड 30% डेटा ट्रेनिंग के लिए। तो देखो नाम आई हैव चेंज्ड। सो जो ऊपर का जो डेटा है आवर्स को मैंने लिखा है एक्स ट्रेन डेटा, मतलब ये ट्रेनिंग के लिए इतना डेटा होगा। एक्स का इनपुट डेटा विल बी यूज फॉर ट्रेनिंग, वाई का आउटपुट डेटा हो जाएगा वाई ट्रेन, एक्स का टेस्टिंग डेटा विल बी एक्स ट्रेन, वाई का टेस्टिंग डेटा विल बी वाई टेस्ट, सॉरी। ठीक है, जानबूझ के बीच में गैप किया गया है, आपको आगे जाके समझ में आएगा। नाउ how to prepare an equation, it is very simple. Regression analysis is very simple. Let us move forward. So firstly what we do is, you can see over here, firstly what we do is, ये जो training data है, for now I will remove this testing data because it will confuse you. Okay, I am removing it. ये जो training data है, number of hours is plotted on x axis and your percentage which is y train data is plotted on y axis। और उसके बाद ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आप लोगों को, आई एम डिलीटिंग दिस पार्ट, ये जो आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो ऑरेंज कलर के पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, व्हाट आर दिस? दीज आर परसेंटेज। फॉर एग्जांपल, इफ अ स्टूडेंट इज स्टडिंग फॉर 1 hour he is getting 45%। Similarly, see over here, 1 hour a student is studying, he is getting how much? 45%, 1,45। you can see over here 1,45। if I zoom it, you will see more properly. Student is studying for 1 hour, he is getting 45% somewhere over here. If I go on y axis. Similarly, another student is studying for 2 hours, he is getting 56%. So he is studying for 2 hours, he gets 56%, and so on. So there is a student who studied for 8 hours and he gets around 89%. 8 hours पढ़ाई करने के बाद he got 89%, around 90 के आसपास। You can see over here 8,89 in small bracket just below the cursor. Okay, so first what we need to do is, we need to make a scatter plot. This is termed as scatter plot. On x axis some values, on y axis some values. After making this scatter plot, can you see that these dots, or these dots of number of hours versus percentage, these dots are arranging themselves in a straight line? Can you feel that they are following a straight line? क्या आपको लग रहा है कि वो एक straight line को follow कर रहा है? Exactly straight line को तो नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत तो straight line को कर रहा है। मतलब यहां से अगर मैं एक straight line बनाऊं तो एकदम straight line को वो follow कर रहा है, जैसे ये वाले sheet में मैं दिखाता हूं। You can see in this sheet over here, see over here,
If I draw a straight line, you can imagine that all the lines are following a straight line. ठीक है, तो it is an imaginary straight line. I can give you a very simple example that in your university का exam on one bench one student sits. एक bench में एक ही बच्चा बैठता है. आपकी टीचर आती है, बोलती है कि you sit in a straight line. Is there any line that you can see? You cannot see any line. But you imagine that there is a straight line and you follow that straight line. You see the आगे का student and पीछे का student and then you arrange yourself in a straight line. Similarly, this is an imaginary straight line. It is drawn in such a way that all the dots are either on the line or it is near to this line. On the line or it is near to this line. ये जो लाइन है, ये लाइन आगे जाके प्रिडिक्शन करने वाला है. हमने ये लाइन जानबूझकर फिट किया है. हमने जानबूझकर ये लाइन बनाया है इस तरीके से सो दैट सारे डॉट्स आइदर लाइन पे आ जाए या लाइन के अगल बगल रहे. ठीक है, अब ये प्रिडिक्शन कैसे? So I want to predict that if I want to predict that if I study for 6.7 hours, how much percentage I am going to get. I will get this prediction with the help of this imaginary line. How? See, I am plotting a line over here. Say 6.7 hours is coming somewhere over here. I am plotting a vertical line. 6.7 hours somewhere over here. Then I am making a horizontal line over here, somewhere over here. You can see over here. So how much I am going to get? I am going to get somewhere over 78 or 79%. So on y-axis you can read this. On y-axis this point is around 78 or 79 and here it is 6.7. So if I want that if I study for 8.5 hours, how much will be the percentage? Again, go upward in this direction, then again you plot this line over here like this way and you see on y-axis how much percentage you are going to get. So you will be getting around 89%. This is how an imaginary line will predict each and everything that you want the line to predict. Okay, it is very simple, but when you try to predict something, it becomes very difficult and again you cannot plot a vertical line then again horizontal line. आप बार बार horizontal line और vertical line को plot नहीं कर सकते. इसलिए हम क्या करते हैं, इस line का, इस imaginary line का हम एक equation बनाते हैं. We make an equation for this imaginary line. So what is the equation of this imaginary line from your 12th standard का concept? It is y is equal to mx plus c. Y is equal to mx plus c. ठीक है, और जिसके अंदर c जो है वो y इंटरसेप्ट है और m जो है इट इज अ स्लोप. सो y इंटरसेप्ट क्या है? c इज अ y इंटरसेप्ट. मतलब ये वाला जो लाइन है वो y एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है? ये वाला जो ब्लू लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, वो y एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है? दैट इज योर y इंटरसेप्ट. सो इट इज कटिंग एट 44 पे कट कर रहा है. तो देखो यहां पे दिखाया हुआ है दिस मच डिस्टेंस इज नथिंग बट c विच इज 44. ठीक है, तो y इंटरसेप्ट मिल गया है 44. स्लोप कैसे मिलेगा? m का वैल्यू. स्लोप के लिए यू ऑलरेडी हैड अ फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. तो इस लाइन के ऊपर कोई भी दो डॉट ले लेना है. पहला डॉट जहां पे ये लाइन कट कर रहा था y एक्सिस को, दैट इज 0,44. दूसरा डॉट वी हैव टेकन ओवर हियर 7,80. दिस इज द सेकेंड वाला डॉट 7,80. ये दो पॉइंट्स मिल गए, आराम से स्लोप निकल जाएगा विच इज y2 minus y1. So 80 minus 44 divided by x2 minus x1, 7 minus of 0. So that is 5.14. So this is the m ka value. It is very easy. So here I have got the value of c. I have got the value of m. आपको लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा. What is the equation of that line? We have already plotted over here. So I'll just bring it over here. The equation of this line. So the equation of this line is y is equal to 5.14 जो आपका स्लोप मिला था प्लस 44. तो अब आपको अगर जानना है कि आप अगर 6.7 आवर्स के लिए पढ़ाई करते हो तो आपको कितना परसेंटेज मिलेगा, बस ये x की जगह पे यू सब्स्टिट्यूट 6.7 और आपको y का वैल्यू मिल जाएगा. दिस इज हाउ अ रिग्रेशन लाइन प्रिडिक्ट्स योर वैल्यू. आई रिपीट अगेन, दिस इज हाउ
अ रिग्रेशन लाइन प्रिडिक्ट्स योर वैल्यू। और ये जो प्रोसीजर है इसको बोलते हैं फिटिंग ऑफ लाइन। आई रिपीट, इस प्रोसीजर को बोलते हैं फिटिंग ऑफ लाइन, क्योंकि हम लाइन को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके डेटा सेट के ऊपर, और इस तरीके से वो सीख रहा है और आपको प्रिडिक्शन देने की कोशिश कर रहा है इक्वेशन की मदद से। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी आई हैव यूज्ड ओनली 8 डेटा पॉइंट एंड दिस इज माय थर्ड स्टेप। ध्यान से देखना, थर्ड स्टेप क्या था? ट्रेनिंग ऑफ एल्गोरिदम। ये एक मेथड है, लीनियर रिग्रेशन एक मेथड है, ऐसे बहुत सारे मेथड्स है। ठीक है, ये तो एक स्टैटिस्टिकल मेथड है, ऐसे बहुत सारे मेथड है, सबका तरीका अलग अलग है। पर इस थर्ड स्टेप को बोला जाता है जहां पर आपको इक्वेशन मिल जाता है या फिर आपको प्रिडिक्शन मिलना चालू हो जाता है, उसको बोलते हैं ट्रेनिंग ऑफ एल्गोरिदम। ट्रेनिंग का मतलब एल्गोरिदम की दिमाग की ट्रेनिंग हो रही है और उसको लर्निंग कैपेबिलिटी दिया जा रहा है, वही हुआ यहाँ पे। इक्वेशन मींस लर्निंग कैपेबिलिटी हैज बीन प्रोवाइडेड। ठीक है, अब ये थर्ड स्टेप होने के बाद योर लास्ट स्टेप इज इवैल्यूएशन ऑफ एरर। आई रिपीट अगेन, योर लास्ट स्टेप इज इवैल्यूएशन ऑफ एरर। अब ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो लाइन प्लॉट हुआ है, ये जो लाइन प्लॉट हुआ है वो कितना एरर दे रहा है। ठीक है, वो कितना एरर दे रहा है वो चेक करने के लिए मेरे को टेस्टिंग डेटा यूज करना पड़ेगा। टेस्टिंग डेटा यूज करना पड़ेगा। अगर मैंने ट्रेनिंग डेटा यूज किया कि 6 घंटा पढ़ूंगा तो कितना मिलेगा, तो ध्यान से देखना, 6 घंटा पढ़ूंगा, इफ आई स्टडी फॉर 6 आवर्स कितना मिलेगा, तो वो मिलता जुलता लगभग सेम आंसर देगा मुझे। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम जाते हैं टेस्टिंग डेटा के पास। चलो जाते हैं फोर्थ स्टेप के ऊपर, विच इज इवैल्यूएशन ऑफ एरर। आपका सॉफ्टवेयर कितना एरर दे रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्थ स्टेप इवैल्यूएशन ऑफ एरर। आपका एक्स टेस्ट डेटा यहाँ पे है, वाई टेस्ट भी डेटा यहाँ पर ही है। हम क्या करेंगे, प्रिडिक्शन कितना दे रहा है ये इक्वेशन, वो हम देखेंगे। प्रिडिक्शन कितना दे रहा है का मतलब, अगेन अ वेरी स्मॉल एग्जांपल दैट आई गिव अगेन एंड अगेन, दैट आपने मैथ्स का एग्जाम दिया, मैथ्स का एग्जाम देने के बाद आपको कोई पूछता है कि तुझे कितना मिलेगा, so out of 100 you say I will get 80 marks. This is your prediction that I will get 80 marks is your prediction. लेकिन आपको एक्चुअली मिलता कितना है, 70 मार्क्स मिलता है। सो दिस इज योर एक्चुअल मार्क्स 70, जो सच में मिला हुआ है। तो 80 माइनस 70 विल बी द एरर इन योर प्रिडिक्शन। ठीक है, दैट इज द एरर इन योर प्रिडिक्शन। सिमिलरली अगर मैं जो इक्वेशन मैंने बनाया है उसके अंदर मैं डालू x का वैल्यू इज 9, इफ आई सब्स्टिट्यूट ओवर हियर से x का वैल्यू इज 9, तो मैं यहां पे लिखता हूं इज इक्वल टू x का वैल्यू मैं 9 डाल रहा हूं ये वाले इक्वेशन में, और मैं एक्सेल में कर रहा हूं, वह 5.14 इंटू x का वैल्यू इज 9, आई एम पुटिंग ओवर हियर, मतलब वो डायरेक्टली उसने 9 को ले लिया प्लस 44, यही था हमारा इक्वेशन। जब मैंने क्लिक किया तो मुझे सॉफ्टवेयर या इक्वेशन कितना प्रिडिक्शन दे रहा है, 90.26। सॉफ्टवेयर कितना प्रिडिक्शन दे रहा है, 90.26। जैसे आपने प्रिडिक्शन दिया ना कि मुझे मिलेगा 80 मार्क्स मिलेगा, तो वो आपका प्रिडिक्शन था, तो वैसे सॉफ्टवेयर कितना प्रिडिक्शन दे रहा है, 90.26। एरर कितना आया, एक्चुअली उस बच्चे को कितना मिला था, 78 मिला था, है ना, पर सॉफ्टवेयर बोल रहा है कि 90.26 मिलेगा। तो दोनों के बीच का एरर क्या हुआ, व्हाट आई विल डू इज दिस 90 माइनस ऑफ 78, तो एरर कितना आया, 12.26% का एरर आया प्रिडिक्शन में और एक्चुअल में। दिस इज द एक्चुअल वैल्यू एंड दिस इज द प्रिडिक्टेड वैल्यू। ठीक है, तो जानबूझ के लिखा हुआ है वाई टेस्ट, क्योंकि ये टेस्टिंग डेटा है, वाई टेस्ट प्रिडिक्टेड ऐसे लिखा हुआ है, एरर इज दिस थिंग। तो मुझे क्या करना है, ऐसे मुझे सबके लिए निकालना है कि एरर कितना आ रहा है, तो सबके लिए निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, आई एम ड्रैगिंग दिस, तो सबके वैल्यूज मिल गए। सबका एरर निकालना है तो फिर से मैं क्या कर रहा हूं, फिर से 72 माइनस 67 करूंगा तो यहां पे कुछ वैल्यू मिलेगा, अगेन आई एम ड्रैगिंग दिस, तो मुझे वो वैल्यू मिल गया। तो ये मुझे मिल रहा है एरर, मतलब जब बच्चा 9 घंटे के लिए पढ़ रहा था तो प्रिडिक्शन एरर क्या है, सॉफ्टवेयर ने दिया हुआ है 12.26। जब वो 6.5 पढ़ रहा था तो प्रिडिक्शन एरर कितना है, 8.41 का। लेकिन अब मुझे ये जानने में इंटरेस्ट नहीं है कि कौन सा बच्चा पढ़ रहा था तो कितना एरर मिला है, मुझे ये जानने में इंटरेस्ट है कि ओवरऑल आपका सॉफ्टवेयर कितना एरर देता है।
नहीं समझा? अगेन आई विल रिपीट। आपके क्लास में 60 स्टूडेंट्स है, ठीक है, मुझे ये जानने में इंटरेस्ट नहीं है कि पहले बच्चे को कितना मार्क्स मिला है और रोल नंबर 5 को कितना मार्क्स मिला है, रोल नंबर 60 को कितना मार्क्स मिला है। मुझे ये जज करने में इंटरेस्ट है कि आपके पूरे डिवीजन को ओवरऑल कैसे मार्क्स मिले। अगर मैं बाहर जाऊंगा, मुझे चर्चा करने की भाई ये डिवीजन के बच्चे अच्छे हैं या खराब है, तो मैं कैसे जज करूंगा? एक दो बच्चों के मार्क्स पर नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहले वाले का एरर 12 आ रहा था, पर पांचवें वाले का या चौथे वाले का एरर तो 8 आ रहा है, तीसरे वाले का तो और कम आ रहा है। तो मैं कैसे जज करूं कि ये पूरा जो सॉफ्टवेयर है वो कम एरर दे रहा है या ज्यादा एरर दे रहा है? सो इट इज बेटर दैट आपके क्लास में 60 स्टूडेंट है तो 60 स्टूडेंट्स के सारे बच्चों के मार्क्स को एवरेज कर दो। एवरेज कर दो, एक नंबर मिलेगा, ओनली वन नंबर यू विल गेट। तो एवरेज करने के बाद अगर मिलता है 75%, तो मैं बोलूंगा अरे वाह, दिस क्लास हैज स्कोर्ड अराउंड 75%। तो वैसे ही इन सारे एरर्स को एक में कन्वर्ट के लिए करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सबका कर दूंगा एवरेज। मैं एवरेज कर दूंगा इन सबका। एवरेज करने के लिए इन सबको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, एंड सो दिस इज द एवरेज एरर गिवन बाय दिस सॉफ्टवेयर। आई रिपीट अगेन, दिस इज द एवरेज एरर गिवन बाय दिस सॉफ्टवेयर। इस एरर को बोला जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। इस एरर को बोला जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको एब्सोल्यूट क्यों बोला जाता है? मीन एब्सोल्यूट एरर। ऐसा भी हो सकता है कि उसको y टेस्ट का वैल्यू 45 था और प्रिडिक्टेड मिल गया 42। ऐसा भी हो सकता है, प्रिडिक्टेड 42 मिले, हो सकता है। तो यहाँ पे एरर माइनस में आएगा, माइनस में आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम एवरेज करेंगे तो इस -3 को +3 में कन्वर्ट कर देते हैं। माइनस आए चाहे पॉजिटिव आए, आपको सिर्फ पॉजिटिव ही नंबर लेना है। इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट, मतलब नेगेटिव आया तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, ऐसा, ठीक है। हेंस दिस एरर का नाम इज मीन एब्सोल्यूट एरर, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन अमाउंट ऑफ एरर। नेगेटिव का क्या मतलब है? नेगेटिव का मतलब है कि एरर जो है वो कम हो गया है या एरर जो है वो बढ़ गया है, डायरेक्शन बता रहा है। नेगेटिव साइन इज जस्ट गिविंग यू डायरेक्शन, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डायरेक्शन। इवन इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपने 1 किलोमीटर लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रैवल किया, फिर आपने 1 किलोमीटर राइट डायरेक्शन में ट्रैवल किया। मैं बोल रहा हूं लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रैवल करोगे तो उसको मैं बोलूंगा नेगेटिव साइन, राइट डायरेक्शन में ट्रैवल करोगे मतलब उसको मैं बोलूंगा पॉजिटिव साइन। लेकिन भाई आपने ओवरऑल हाउ मच डिड यू ट्रैवल? ओवरऑल यू ट्रैवल 2 किलोमीटर्स। अगर मैं यहां पॉजिटिव माइनस लगाने चलूं तो क्या होगा? यू ट्रैवल 0, लेफ्ट में 1 गया, राइट में 1 गया, बट एक्चुअली यू ट्रैवल्ड 2 किलोमीटर्स ना। इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव हम हटा देते हैं। अगर -3 आया है तो उसको हम सिर्फ क्या लिखेंगे? सिर्फ 3 लिखेंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इसीलिए उसको बोला जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। लकीली हमारे केस में ऐसा कुछ आया नहीं था, पर नेगेटिव आ जाए तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके ले लेना है। सो दीज वर दी 4 स्टेप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई रिपीट अगेन एंड देन वी विल स्टॉप दिस लेक्चर हियर इटसेल्फ। द फर्स्ट पार्ट वाज डेटा प्रिपरेशन, जो ऑलरेडी है। सेकेंड पार्ट इज स्प्लिटिंग ऑफ डेटा। स्प्लिटिंग ऑफ डेटा में 2 पार्ट था, इनपुट एंड आउटपुट डेटा, एंड देन ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा। तो दिस इज योर डेटा। देन ओवर हियर सेकेंड पार्ट में इनपुट और आउटपुट में हमने इसको डिवाइड कर दिया, इनपुट को नाम दे दिया x, आउटपुट को दे दिया y। फिर स्टेप 2 का सेकेंड पार्ट था कि उसको ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवाइड करो। अब आपने देखा ये वाला जो पार्ट है हमने लाइन क्या इक्वेशन बनाने के लिए यूज किया है, ये वाला हमने टेस्ट करने के लिए यूज किया हुआ है। व्हाट इज द रीजन? दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। अगेन मूविंग फॉरवर्ड, विच इज स्टेप नंबर 3, वी मेड अ स्ट्रेट लाइन, इमेजिनरी लाइन विद द हेल्प ऑफ डॉट्स। डॉट से ही लाइन बना है, उसी लिए ये लाइन प्रेडिक्ट कर रहा है। इंटरसेप्ट निकाला, स्लोप निकाला यहाँ पे, एंड you made the equation. Once the equation is made, third step is over, मतलब training of equation, sorry, training of algorithm is over. Fourth part was evaluation of error.